This call is now. स्टूडेंट्स, कैन यू ओपन योर कैमरा? एक बार आप ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? Okay, fine, no problem, ma'am. Okay, so now I can start, ma'am. Yes, you can start. So today our topic is subsets and Venn diagram. So if I am starting the topic subset and Venn diagram, my first question is, can anyone tell me what is the definition of sets? If we can definitely and clearly decide the objects of a given collection, then that collection is called a set. Okay, so can you give example? Days in a week. Okay, so if I am asking like a simple question, you tell me कि ये set होगा या नहीं होगा, right? So all the writers of India, can you tell me क्या ये आपका set होगा? Yes, tell me. Like it's a quick revision if I'm starting the subsets. So firstly, I want to know कि all of you have clear the definition of sets. Then I will continue the Venn diagram and the topic subset. My question is, all the writers of India, is it a set or not? If yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, all the writers of India. Beta, you said the definition is of the set is we can definitely and clearly decide the object, right? I said कि all the writers of India, क्या मैंने कोई subject mention किया यहाँ पे? No, ma'am. तो writers तो बहुत सारे हैं. मैं No, किस ma'am. राइटर की बात कर रही हूँ? तो वो तो मेंशन नहीं है ना यहाँ पे. So क्या ये सेट होगा? No, ma'am. No. No, ma'am. Now definition is clear. So अगर आप किसी भी चीज को सेट बोल रहे हो तो वहां पर बेटा कोई भी लाइक आपको एम्बिक्विटी नहीं होनी चाहिए, मतलब मींस कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब किसी के भी माइंड में नहीं आया कि राइटर्स, विच टाइप ऑफ राइटर्स, विच सब्जेक्ट राइटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. So there are the lot of writers in India, so this is not a set. If I am saying कि the best 5 writer and subject Marathi, now you can say subject mention है वहां पर किस subject के writer की आप बात कर रहे हो, then you can say is it is a set. I hope the definition is clear now. Yes, ma'am. yes, Okay. Okay. So the topic now I'm starting subset and Venn diagram. So firstly, why we need Venn diagrams and what is the meaning of subset? So basically I'm writing here the definition. Set is a well-defined collection of objects. वेल डिफाइंड मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वो हो सकता है. वॉवल्स हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, राइटर्स, सिंगर्स एंड एनी. नाउ आई एम स्टार्टिंग वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम की हमें नीड क्यों पड़ी एंड वेन डायग्राम का मतलब है क्या? सो इफ यू हैव गिवन मोर देन वन सेट, अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा सेट्स हैं लाइक ए बी एंड सी, अगर मुझे उन तीनों सेट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है तो हम किसका यूज करते हैं? वेन डायग्राम का. वेन डायग्राम आपका क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है, लाइक सर्कल टाइप या यू कैन से रेक्टेंगल टाइप. So Venn diagram is your closed figure and you have to see the relationship between more than two objects, yeah, two sets. Then it is known as Venn diagram. Now, is it clear the definition what I'm saying the Venn diagram is?
Like example, if I'm giving A is 1, 2, 3, 4, 5. This is a set. Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So this A is set is, it has 5 elements, 1, 2, 3, 4, 5. So Venn diagram basically is a closed figure. You have to represent these elements in like circle form, or you can write in rectangle form. So you have to see the relationship between more than two sets. I'm taking the single set. Next, if I'm taking B set, 5, 6, 7, 8. C set is 1, 2, 5. Now I want to check what is the relationship between these sets. So I will use Venn diagram, and it is the easiest method to see the relationship between two sets. Like if I'm saying 5 and 4. Now can you tell me which one is greater than 5. 5? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दो एलिमेंट्स के बीच में देखा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है. बट अगर हमें सेट्स के बारे में बात करनी है तो उनके बीच में हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं आपका वेन डायग्राम से, राइट? अब वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जब आप टॉपिक 6th क्लास में 5th क्लास में इंटीजर्स पढ़ते हो, इंटीजर्स में आप क्या क्या ऑपरेशंस यूज करते हो? कैन एनीवन टेल मी? अगर आपके पास ये 2 इंटीजर्स हैं, राइट, 2 and -3, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? बेटा मैं ना रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि सेट्स में, और बिकॉज दिस टॉपिक इज टोटली न्यू चैप्टर, इस टॉपिक को मैं रिलेट करना चाह रही हूँ आपका इंटीजर्स चैप्टर से. जैसे आपने इंटीजर्स पढ़ा, इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. फिर आपने देखा कि हाउ टू ऐड इंटीजर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड. क्या ये सब आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं इंटीजर्स पे? यस प्लीज. कैन यू हियर मी? हेलो. मैम आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा बेटा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, क्या आपने इंटीजर्स में ये ऑपरेशंस पढ़े हैं कि हाउ टू ऐड इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? ये सब आपने सीखा है लाइक 6th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में? यस मैम. यस मैम. अब हम जो टॉपिक Yes, ma'am. का सेट्स, जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं, इस सेट्स में भी हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि हाउ टू ऐड सेट. पर हम यहाँ पर ऐड वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूनियन वर्ड यूज करेंगे, इंटरसेक्शन वर्ड यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज करेंगे, डिफरेंस वर्ड यूज करेंगे. तो अगर हमें सेट्स के बीच का कुछ ऑपरेशन, कुछ रिलेशनशिप दिखाना है, तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कि सेट्स को कैसे अब हम रिलेट कर सकते हैं. इतना समझ आया है? यस मैम. Okay. Yes, ma'am. So Venn diagram basically is your closed figure, and if you have to see the relationship between sets, हम Venn diagram का यूज करते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम सेट्स को रिलेशनशिप दिखाएंगे Venn diagram की हेल्प से. अब उससे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन करते हैं सबसेट की. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट. अब सबसेट के लिए अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपके लिए पहले क्या होने चाहिए? 2 सेट. कोई भी आपके पास 2 सेट होने चाहिए. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यस मैम. और एलिमेंट्स को हमेशा Yes, स्मॉल ma'am. लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है? या सो सबसे पहले सबसेट की अगर आप डेफिनेशन, अगर भी आपसे कोई भी पूछता है तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? लेट ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट या 2 सेट्स.
सबसे पहले ए और बी आपके पास दो सेट होने चाहिए। अब ए बी का सबसेट कब कहलाएगा या बी ए का सबसेट कब कहलाएगा? लेट्स से एग्जाम्पल, ए 1 2 3 एंड बी इज 2 3, okay, 1 2 3 4 1 2। कैन एनीवन टेल मी ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3. 3। उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, Three. so कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3 एंड द कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट इज 2. 2। अब आप मुझे बताओ, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? ए में है 1 2 3, बट बी में सिर्फ क्या है 1 एंड 2, और 1 और 2 दोनों क्या ए में आ रहे हैं? Yes, ma'am. It means all the elements of B in set A. So I'm saying the simple definition, if A and B are two given sets and every element of B is also an element of set A. सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आप कह रहे हो कि B A का सबसेट है, इट मीन्स B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आ रहे हैं? A में आ रहे हैं। So it means B is a subset of A. This is the notation of subset. It means B के सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं आपके? A में आ रहे हैं। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि B A का सबसेट है, और वो क्यों है? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में आ रहे हैं। क्या A B का सबसेट होगा? इफ यू No, हैव ma'am. कोई भी बेटा किसी को डाउट है, सो प्लीज रेज योर हैंड। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ कि हमने अभी सबसेट की डेफिनेशन क्या की है। अगर आप कह रहे हो सबसे पहले आपके पास दो सेट का होना जरूरी है, ए बी या बी सी, एनी नेम यू कैन राइट। फर्स्टली यू हैव गिवन टू सेट्स, नाउ यू हैव टू सी। अब आपको क्या देखना है कि किस सेट के एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं। हमने देखा कि बी में जो एलिमेंट है 1 और 2 वो एज इट इज आपके ए सेट में आ रहे हैं। सो इट मीन्स बी क्या है? ए का सबसेट है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? No, ma'am. कौन सा एलिमेंट है जो नहीं आ रहा है? 3. It means A is not a subset of B. So this is the notation of not a subset because A के सारे एलिमेंट B में नहीं आ रहे। समझ आए डेफिनेशन क्या है क्या नहीं? बताओ। यस बेटा, अभी किसी ने हैंड रेज किया था, बोलो। मैम मैंने किया था, अब डाउट हाँ जी। क्लियर हो गया। पक्का हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल Yes, जरा ma'am. मुझे आप बताओ इनमें से कौन सा किसका सबसेट है। ठीक है, ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बी सेट है आपके पास 2 4 6 8। अब मुझे बताओ कि कौन किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? बी ए का सबसेट है। बी ए का। वेरी गुड, बिकॉज ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 8 एंड बी सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 4 और बी के सारे एलिमेंट एज इट इज ए में आ रहे हैं। 2 देखो ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा, 8 ये रहा। सो इट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ आई वांट टू आस्क लाइक सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। सबको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? Yes, ma'am. रियल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, सबको पता है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So my question is, n means set of natural numbers. n का मतलब क्या है? सारे natural numbers you have to take. I means you have set of integers. मीन्स ए सेट आपका क्या है? नेचुरल नंबर्स का, और बी सेट आपका क्या है? इंटीजर्स का. नाउ टेल मी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए. किसके सारे एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं? A is a subset of B. ओके, रेस्ट ऑफ ऑल प्लीज, बाकी बच्चे भी बताओ. बेटा जब तक आप अपना डाउट क्लियर नहीं करोगे, कोई बात नहीं, गलत होगा, इट्स ओके, मैं यहाँ पे हूं, मैं करेक्ट करूंगी, बट एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्स दो कि आपको कितना समझ आया है एंड कितना आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो, डेफिनेशन को. आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, इट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इंटीजर्स मीन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब ए सेट ये है आपका एंड बी सेट आपका ये है, तो किस सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं? नेचुरल नंबर के सेट A के नेचुरल नंबर के B में आ रहे हैं. किसने जवाब दे दिया है? जरा मुझे बताओ कौन रह गया है, किसको अभी डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड. वेरी गुड. जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही है कि नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में है 1 2 3 4 5, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, but these numbers are not in set A. So it means A is a subset of B. Right? समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay. Let's take one example more. Now I want to see कि आपको कितना समझ आया है. ठीक है? Next example. P set आपको दिया हुआ है. सबको set builder form, roster form आती है? Yes, ma'am. Okay. So let's take example X. X is square root of 25. And Q set you have given Y belongings to integers. अब आप मुझे बताओ P Q का सबसेट है या Q P का सबसेट है? दिस इज द क्वेश्चन. सोचो एंड देन मुझे बताओ कि P Q का सबसेट है. ओके बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है कि रोस्टर फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. Rest of the student, please tell me, beta. I am giving you 2 to 3 minutes. Think and tell me. प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में करो. अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो. रोस्टर फॉर्म का मतलब सेट की फॉर्म में, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा किसके एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं. किस किसने कर लिया है बताओ? ओके.
सी x is a square root of 25. कौन बताएगा इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? पी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 5. ओनली 5. Yes, ma'am. 25. Yes, ma'am. Hi. Square root of 25. 5. This it means like this way. X is a square root of 25. Only 5. Can you write x square is 25? Can you write it or not? Right, Yes, ma'am. ma'am. So x Right, square ma'am. minus 25 equal to 0. बेटा क्या यहाँ पर a square minus b square आइडेंटिटी नहीं बन रही है आपकी? Tell me. A square minus b square. Can you write x square minus 5 square is equal to 0? What is the identity of a square minus b square? बताओ क्या होता है आइडेंटिटी a square minus b square? A plus A plus yes beta please tell me. श्रुति बताओ बेटा. प्रतीक्षा. A B plus A plus B Yes. bracket हाँ जी. bracket A minus B. Very good. So a plus b, a minus b. So a square means x square. b square means 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं? So x लिख square सकते हैं। minus 5 square is equal to 0. Now I am using this identity. So a plus b, a minus b is equal to 0. So if x plus 5 is 0, then you get the value of x is minus 5. Or x minus 5 is 0, then you get x is equal to. So how 5. many values of x is? Only 5 or plus minus 5? Plus minus 5. So p set plus में minus. कौन से elements आएंगे? Plus minus 5. So square root जब भी हटता है बेटा साथ में क्या आता है? Plus minus. This point is clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, Yes. Yes. Okay. Okay. So P set already you have written minus 5, 5. And what is in the Q set? How many elements? Infinite. Infinite. Better see No, y ma'am. belonging to integers. Hello? Hello? Yes, ma'am. Better wait for a 1 minute. Yeah, yes, ma'am. Yeah. So can anyone tell me what is what are the elements in set Q? Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. But beta, 90% is correct. What is the meaning of this inequality? If I am saying minus 5, this equality,
क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर वो लाइन नहीं है। किसी स्टूडेंट को पता है कि इसका मीनिंग क्या होगा? यस मैम, बताओ। एक 5 पॉजिटिव है, एक 5 नेगेटिव है। देखो बेटा, इसका मतलब है कि -5 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए और 5 से लेस, बट -5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर एंड 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर आपके पास ये इक्वालिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको -5 भी लेना है और -5 से बड़ा नंबर इंटीजर है -4, देन -3, देन -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 also you have to take. But in the second one, equality is not here. It means -5 और 5 included नहीं है. Only you have to take greater than -5 and smaller than 5. तो अभी जिसने मुझे आंसर दिया था -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, वो किस में आएंगे? जब आपके पास यहाँ इक्वालिटी नहीं है। डिफरेंस समझ आया दोनों में क्या है? यस मैम। सो इट मीन्स अब आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि क्यू सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सो यू विल राइट -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Is it clear? Yes. Yes ma'am. Now tell me, P is a subset of Q या Q is a subset of P? P is a subset of Q या Q is a subset of P? P is a subset of Q. Very good. This definition of subset is clear. Please tell me all of you. Is there any doubt? Then ask me. कि इस क्वेश्चन में आपने दो चीजें सीखी हैं. फर्स्ट वन कि अगर स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है. सेकेंड स्टेप आपने सीखा कि अगर इक्वालिटी है इट मींस जो एंड पॉइंट हैं आपके वो इंक्लूडेड होते हैं. अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं है इट मींस आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं. Is there any doubt? No, ma'am. No ma'am. Okay. So कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं सबसेट में. Yes. Now take example. A is 1, 2, 3. क्या हर सेट आपका खुद का सबसेट होता है? क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ? A में है 1, 2, 3. A is a subset of A. Yes or no? Yes. So they are the few points. Then you can mark star. First is every set is a subset of itself. मतलब अगर आप कोई भी सेट ले रहे हो वो हमेशा खुद का सबसेट होता है. So first point is every set is a subset of itself. Means A is a subset of A. This is your first key point. Is it clear? Yes, ma'am. Yes ma'am. सेकेंड पॉइंट आता है आपका. अच्छा मुझे कोई बताओ एम्प्टी सेट क्या होता है? मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, जीरो तो भी आप ना हो. एम्प्टी भी बोल सकते हो, नल्स भी बोल सकते हो और वॉइड भी बोल सकते हो. तीनों का मतलब सेम ही है. एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, तीनों का मतलब क्या है आपका? सेम है. ठीक है. सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट की नोटेशन पता है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को? इट रिप्रेजेंट्स लाइक 5. इसको क्या बोलते हैं? PHI 5. सो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. 5 का मतलब कुछ भी नहीं है. A का मतलब जो भी आपको सेट दिया हुआ है. सो दिस इज योर सेकंड की पॉइंट. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट
कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। सेकंड वन, एम्प्टी सेट जो होता है, या आप नल सेट भी बोल सकते हो या आप वॉइड सेट भी बोल सकते हो, तीनों का मतलब सेम है। सो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर ए सेट में दे दिए 1, 2, बताओ इसके कितने सबसेट बना सकते हो आप। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इफ यू हैव अ गिवन सेट ए एंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 2, देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए, या what is the formula to find subset of any set. The two type of questions we can ask कि how we find subsets and what are the subsets, वो क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए। क्या ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि सबसेट निकालते कैसे हैं। Yes, ma'am. बेटा इज देयर एनी डाउट? बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स दो। Yes, ma'am. मानसी, Yes, okay, ma'am. अपूर्वा, okay. Yes. So these 2 points are very important. Every set is a subset of itself and empty set is a subset of every set. Okay. अब हमें इसके सबसेट निकालने हैं कि इस ए सेट में कितने सबसेट आएंगे। पहला, बेटा क्या मैं लिख सकती हूँ इसका सबसेट 5 होगा? यस और नो? अभी हमने पढ़ा कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेट का मतलब है ए, तो 5 इसका सबसेट हो गया। Yes, ma'am. नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक सबसेट ये भी हो गया। बोलो। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. डायरेक्ट आपको पता चल गया कि अगर आपको किसी भी सेट के सबसेट निकालने हैं तो 5 तो हमेशा आएगा ही आएगा, और वो सेट भी खुद अपने आप में आएगा। अब और कौन कौन से बन सकते हैं? क्या इसका एक 1 बन सकता है? Yes, ma'am. सबसेट के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है? वी हैव 2 सेट्स, एक ए सेट होना चाहिए, एक बी सेट होना चाहिए। तो ए सेट हमने लिया 5 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, डन। देन ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1, 2 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, डन। अगर हम 1 ले रहे हैं, क्या वो इसका सबसेट है? Yes, ma'am. Because Yes, ma'am. here is only 1 and here is 1, 2. 1 is containing in this set. 1 is a subset of A. क्या हम खाली 2 भी ले सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So इस A सेट के कितने सबसेट हो गए? 4. 1, 2, 3, 4। समझ आया ये? Yes, ma'am. सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है कि अगर आपको किसी भी सेट के सबसेट्स निकालने हैं तो पहला लिखो 5, फिर लिखो जो सेट आपको दिया हुआ है वो एज इट इज, एंड देन यू हैव टू राइट सिंगल लाइक 1 and 2। तो मुझे पता कैसे लगा कि 4 बनेंगे, तो मैंने डायरेक्ट क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाई। अच्छा एक एग्जाम्पल और बताओ, फिर मैं फॉर्मूला बताती हूँ डायरेक्ट। अगर ये लिखा हुआ है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2. कौन कौन से? 5 और 1. वेरी गुड। सो एक बना आपके पास 5 और एक बना आपके पास 1। इस ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी बेटा? 1. बट इसके सबसेट कितने आए? 2. इट मीन्स द फॉर्मूला इज 2 to the power n। n का मतलब क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ए की कार्डिनलिटी कितनी थी? 1. तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2. देखो आंसर क्या आया था। इस ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी? 1. इस ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी बेटा? 2. 2। तो फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2. कितना आंसर आएगा? 4. तो कितने सबसेट्स आए थे? देखो 1, 2, 3, 4। एक मिनट।
यस बेटा बताओ, समझ आया या नहीं आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक सिंपल क्वेश्चन और जरा मुझे बताओ कि अगर ए सेट की कार्डिनलिटी 3 है, मतलब लाइक 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 9. 9। फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने? इस एन का मतलब क्या है? इस ए सेट की कार्डिनलिटी। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. 8. 3। सो 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8. 8। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 8. 8. तो आपको 4 Eight. ऑप्शन मिलेंगे, 6 8 12 या 10। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 8। 8. बट अगर आपके पास ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है कि वो मुझे 8 सबसेट लिख के बताओ कि कौन कौन से बनेंगे, तब कैसे करोगे? लिखो, मैं 1 मिनट में बस बेटा, प्लीज सॉरी टू डिस्टर्ब, 1 मिनट। लिखा किस किसने? Yes, ma'am. तो बताओ फर्स्ट सबसेट क्या बनेगा? पहला क्या बनेगा? 5। पहला बन गया आपका 5। दूसरा? 1 2 3. 1 2 3, वेरी गुड। एंड द थर्ड वन? 1 2. पहला हम सिंगल सिंगल लेते हैं, ठीक है। 1 बन सकता है, Yes, ma'am. 2 भी बन सकता है, Yes, ma'am. 3 भी बन सकता है, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पहला हो गया 5, दूसरा हो गया पूरा सेट एज इट इज, देन हमने ले लिया सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब हम बनाएंगे 2 2 का पेयर। क्या 1 2 बन सकता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या 2 3 बन सकता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या 1 3 बन सकता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बन गए 8। Yes, ma'am. तो इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो टेल मी, इज देयर एनी डाउट बेटा? सबसेट टॉपिक, बिकॉज सबसेट अभी खत्म हुआ ही नहीं है अभी। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? व्हाट इज सबसेट, व्हाट इज द डेफिनेशन, बिकॉज जो क्वेश्चंस होंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब हम सबसेट पढ़ लिया है, अब हम ए और बी सेट के ऑपरेशंस की बात करेंगे। ऑपरेशंस, अब यहाँ पे आप सेट को ऐड नहीं कर सकते हो, तो हम एडिशन को क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर? यूनियन। सब्ट्रैक्शन की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर? अब हम कॉम्प्लीमेंट, देन डिफरेंस, देन इंटरसेक्शन। दीज आर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और इनको हम वेन डायग्राम से कैसे रिलेट करेंगे, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो सबसेट समझ आ गया कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। तो अगर मैं 4 आपसे पूछती हूँ सीधा सीधा कि अगर ए सेट की कार्डिनलिटी 4 है, मतलब ए सेट में 4 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे उसके? बताओ। 16. 16, वेरी गुड वेरी गुड। यस बेटा टेल मी, सबको समझ आ गया ये फॉर्मूला कैसे क्या हमने डिराइव खुद ही करा है? ये फॉर्मूला हमने डिराइव। Yes, ma'am. Yes. यस, आई होप सबको समझ आया है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डेफिनेशन क्लियर ना हुई हो या कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आया हो? सो प्लीज टेल मी बेटा, इज देयर एनी डाउट? देन यू कैन आस्क मी। तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देन टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन।
एग्जाम्पल है, ए सेट में आपके पास है 1 3 4 7 8। राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ। क्या आप मुझे बताओ ये इसका सबसेट है? पहले मुझे बताओ इसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं। कितने सबसेट्स बनेंगे इसके? 32। 32। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो मैंने आपके सामने 4 लिखे हुए हैं सेट्स, P, T, V एंड S, क्या ये चारों आपके A के सबसेट्स हैं? यस मैम। हे मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, या सो अब like operations I am saying, if you have given A and B two sets, like if A set contain 1 2 3 and B set contain 4 5 6 7, now you have to add these two sets, so we will not use addition, हम use क्या करेंगे? यूनियन। यूनियन को किससे डिनोट करते हैं? U से। यस, तो ये अब हमारे सेट्स के ऑपरेशंस होंगे जो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी अगर ये टॉपिक मैंने अभी शुरू करा तो ये अभी कंप्लीट नहीं होगा। बट आई होप कि ये चीजें आपको सब समझ आ गई हैं। यस मैम। यस, किसी ने हैंड रेज किया? ये शुरू करो। यस मैम, 32 सबसेट या, कैसे है सबसेट। मैम, मुझे समझा। अच्छा, ओके बेटा, देखो यहाँ ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। क्या ए सेट की कार्डिनलिटी 5 आ गई है? यस मैम। अभी मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। आई एम नॉट आस्किंग कि वो सबसेट कौन कौन से हैं। क्या आप मुझे 32 कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ। ए सेट की कार्डिनलिटी 5 है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 की पावर n। इस n का मतलब क्या होता है? इस ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना आएगा? 32। 32। 32 मैम। अब मैं आपसे कहूँ 32 मुझे लिख के दिखाओ, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। तो पेपर में वो इतना बड़ा नहीं पूछता है आपसे, वो पूछता है मैक्स टू मैक्स 3 तक ही। ठीक है, अगर वो 5 दे भी रहा है तो इट मीन्स वो सीधा एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। ओके मैम, क्लियर माय डाउट। All the students is clear the today's session? Is there any doubt? Yes. Yes. Rutu Parna, yes, tell me beta. Is there any doubt? मैम आपने क्वेश्चन पूछा था राइटर्स इन इंडिया इज सेट जी। और नॉट, तो मुझे Yes. आपने बोला था इसमें ये सेट नहीं है, पर मुझे एक डाउट था कि ये सेट हाँ। हो सकता है, तो कैसे मैंने बताओ मुझे? गूगल से पूछा हाँ जी, तो वो बोल रहे हैं कि ये सेट हो सकता है। हो सकता है, बट उसने श्योरिटी दी है आपको? यस मैम। आप मुझे बताओ, राइटर्स में वो पूछ रहा है, बट बेटा वो किस सब्जेक्ट का राइटर वो कर रहा है? आपने उसमें अभी भी आपको कंफ्यूजन तो है ना, किस सब्जेक्ट के राइटर की आप बात कर रहे हो, मुझे वो बताओ पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्रिकेटर्स बताओ इंडिया के कौन कौन से हैं, सिर्फ क्रिकेटर्स के नाम पूछ रही हूँ मैं। अगर मैं कहूं वर्ल्ड के मुझे क्रिकेटर्स बताओ, इज इट अ सेट? टेल मी। बोलो बेटा। नो मैम। वाई? अगर मैं आपसे ये पूछती ना कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताओ, तब वो आपका सेट होता? यस मैम, होता। अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैम नहीं मोस्ट होता। टैलेंटेड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो बेटा बहुत सारे हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैंने? कुछ मेंशन किया? नो कंफ्यूजन मैम, है ना आपको अभी? तो बताओ क्या वो सेट है? नो नो मैम। मैम।
बेटा सेट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज करेगी। तो जितना आप एग्जाम्पल्स आप अपने डेली लाइफ में साइड बाय साइड एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हो, फिर सोचो क्या ये सेट है। जहां आपको 1% हल्की सी भी कंफ्यूजन नहीं हो रही है, तब आप कह सकते हो कि ये सेट है। और अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगता है तो आप ये कहोगे कि ये सेट नहीं है। अब जैसे मैंने ही पूछा आपसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब किसी ने बोला यस है, बट किसी के माइंड में एकदम पिंच हुआ हुआ कि मैम कौन से राइटर की बात कर रही है, कुछ मेंशन तो करा ही नहीं है। तो हल्की सी जैसे ही कंफ्यूजन आई, इट मींस दिस इज नॉट अ सेट। मैम इज इट इसका क्लियर? मतलब राइटर्स इन इंडिया ये सेट नहीं है ना? हाँ, ये नहीं है, क्योंकि राइटर्स अगर मैं सिर्फ इंडिया के पूछ रही हूँ, बट मैं किसके राइटर्स पूछ रही हूँ। राइटर्स तो बहुत सारे हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू में भी मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश कितने राइटर्स मिलेंगे, बोलो। बोलो बेटा। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि मोस्ट टैलेंटेड है तो ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड में तो आपने बता ही दिया कि वो नहीं है, ठीक है। यस बेटा, इज देयर एनी डाउट नाउ, टेल मी। No, ma'am, doubt. ऋतु पढ़ना बताओ बेटा। मैम हाँ जी। राइटर्स जो है ना वो एक मतलब जॉब है, और जैसे इन्फिनिटी सेट में होता है नेचुरल हम्म नंबर, हम्म। वैसे ये भी हो सकता है ना। मतलब आपको इन अगर राइटर्स इन्फिनिटी है तो हम सारे राइटर्स के नाम भी लिख सकते हैं ना? लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन से, अगर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स और सिर्फ राइटर्स, तो आप किसको सजेस्ट करोगे कि ये सेट है? राइटर्स। और उसको क्यों नहीं करोगे? क्योंकि टैलेंटेड मीन्स अलग अलग, जैसे मुझे लगता है कि तो आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइक राइटर्स को हम एक नेचुरल नंबर्स के सेट से कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, राइट? यस मैम। बिकॉज वी आर कलेक्टिंग। सो इफ यू आर राइटिंग दिस वे देन यू कैन से, बट डिफरेंस बेटा फिर भी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मोस्ट टैलेंटेड और सिर्फ राइटर है, सो राइटर्स में अब वो पूछना चाह रहा है इंडिया के, तो आप उसको सेट के फॉर्म में इस तरीके से फिर लिख सकते हो कि ए सेट लाइक दिस वे एंड डॉट 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 कर देना, बट मोस्ट टैलेंटेड राइटर में दिस इज नॉट अ सेट। ओके। Okay, ma'am. मैम वेरी गुड। मतलब राइटर्स इन इंडिया ये सेट है ना? हाँ, ये आप बोल सकते हो अगर आप नेचुरल नंबर से या फिर इंटीजर्स, क्योंकि वो भी हम सेट बोल दो कि वो अंडरस्टूड हम अपने आप में एक सेट लेके चलते हैं, बिकॉज इज अ वेल डिफाइंड लाइक 1 2 3 एंड दिस इज अ infinite set. So you can say writers is infinite set, but most talented writers is not a set. Similarly, Okay you ma'am. can say if I'm talking about singers in India, this can also be a, but most talented singer, this also will be a not a set. I Okay hope ma'am. it's clear now. Okay. Now, is there any doubt, beta? Tell me. Very good, No Ritu ma'am. Parna. Yeah, very good. Thank you Okay, ma'am. so yeah, thank you very much. Nice to meet you, all of you. सेम टू यू मैम। Okay, now you can leave, beta. मैम हमारी नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, okay, beta. Okay, okay, okay.